or so. So make sure that you have revised the topics we talked about yesterday. Like the meaning of real GDP, then nominal GDP, then why real is better than nominal. We discussed these three topics yesterday. Beta, you need to switch on your cameras. Ritik Nanda, Manibha, Rajveer, Hundal, Simran, Sukhampreet, Kashish, Jaspreet. Please switch on your cameras. Any question any one of you would like to ask? Anything which you may have studied and was not clear to you? The meaning of real GDP, nominal GDP, and why real is better than nominal. We discussed these three topics yesterday. Anything from these three topics? Jaspreet, your camera is off, beta. Ritik Nanda, Stephen Sahota, Manveer Singh. Just a moment. Any question from anyone? Any question from anyone? No question? Okay. So today we will be just talking about one more new topic, and then we will do 2 or 3 numericals. That is the agenda for today. Manveer Singh, Diya Kanungo, Stephen Sahota.
Stephen, Manveer, Rhythm, Rishi. I'll just be taking 2-3 more students are joining. Let them join and then we will start. Okay. Till then, you can see the page number 4.28, 4.29, 4.30. If you have got Sandeep Garg's book, you will find very useful material over there. 4.28, 4.29, 4.30. Just go over them once. Okay, let us start. So first, it is your turn. Any question from you regarding the topics we discussed yesterday? Anything you would like to ask? Meanings of real GDP, nominal GDP, and why real GDP is better than nominal GDP. As I told you yesterday as well, that examiner may write GNP, NNP, or GDP. Only those words will change. The meaning and use will remain same. Nominal means value of the total production at current prices. Real means value of total production at base year prices. नॉमिनल को कल हमने सॉल्व भी किया था जो मैंने आपको न्यूमेरिकल भेजा था. आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट. P1 Q1 से हमने नॉमिनल को कैलकुलेट किया था और P0 Q1 से रियल कैलकुलेट किया था. P1 इज प्राइस ऑफ द करंट ईयर, Q1 इज प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर, P0 इज प्राइस ऑफ द बेस ईयर. ये तीन वेरिएबल थे हमारे पास. इसमें किसी ने कुछ पूछना है बेटा? एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? कोई भी चीज जो आपको क्लियर ना हो, आपने पूछनी हो? सब क्लियर है. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ. चलिए अब हम इससे आगे बात को लेकर चलते हैं. देन एट द एंड ऑफ यस्टरडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड व्हाई रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी एंड द आउटकम वाज, आई एम revising, and the outcome was that with change in real GDP, change in production happens, or we can say that change in real GDP happens only when the production of an economy changes. Real GDP तभी change होगा बेटा जब किसी इकोनॉमी का प्रोडक्शन चेंज होगा. और प्रोडक्शन अगर चेंज होगा तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी सिंपल टू से और टू थिंक ओवर दैट more people will be employed in the economy. When more people will have employment, more people will have money to spend. Expenditure will increase, which we call consumption expenditure. C से उसे हम डिनोट करते हैं. ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा लोगों के पास खर्च करने के लिए. जब ज्यादा लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, ज्यादा लोग पैसा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? स्टार्ट करते हैं हम. किससे पूछते हैं? मुस्कान. मुस्कान बताएंगी इन रेड टी शर्ट. अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. सर गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी. डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. सर व्हेन इनकम इंक्रीजेस, when more people get income, more people get money in their pocket, so it will result in increase in total demand or decrease in total demand? increase in total demand. Okay, good morning. चलिए, तो इसका मतलब इंक्रीज इन टोटल डिमांड. इस टोटल डिमांड के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं. मनवीर सिंह, दिया, रिदम, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं विच इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड और एडी. अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा उसे बुक में रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी को, तो वहां पर ये वर्ड आया होगा जिसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और रियल जीडीपी. ओके, चलिए, तो इतना क्लियर है सबको कि रियल जीडीपी, व्हाई रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी. उसके और भी थोड़े कॉजेज होते हैं. अगर आप अपनी
आपके पास ये उसकी संदीप गर्ग वाली बुक है या कोई और भी बुक है, संदीप गर्ग वाली बुक में मुझे पेज नंबर भी याद है 4.28 होगा, वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि व्हाई रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर देन नॉमिनल जीडीपी। नहीं मिलता है तो मैं थोड़ी देर में आपको एक पिक्चर सेंड करूंगा, एज इट इज आपने उसे नोट कर लेना है, एडवांटेजेस ऑफ रियल ओवर नॉमिनल। ओके, चलिए साहब, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने लिखना है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। उसे जीडीपी लिखें आप या जीएनपी लिखें, एक ही बात होती है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इसी को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ऑब्लिक करके ये भी लिख सकते हैं। इसी को बेटा हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। सुखमप्रीत कौर एंड दिया कानून को बेटा आप दोनों का जो कैमरा है वो स्विच ऑफ है, ऐसे बात नहीं बनेगी। डोंट डू दिस अगेन एंड अगेन, फिर मैंने फाइन लगा देना है, और फाइन भी मैं डॉलर्स में लगाऊंगा, अमेरिकन डॉलर्स में, इंडियन रुपीज में नहीं लगाऊंगा। चलिए लिखिए बेटा, इट रेफर्स टू the average level of prices, the average level of prices of all the goods and services, of all the goods and services that make up MAKE, that make up the GDP, that make up the GDP. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। ये जीडीपी या जीएनपी वर्ड चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं आपके चैट बॉक्स में, वो आपने मुझे सॉल्व करके दिखाना है, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल। देखिए आपके चैट बॉक्स में आ गया है। आराम से पढ़िए इसे।
सिंपल फॉर्मूला लगाना है बस आपने। You are getting your answers, please keep checking them. Beta, some of the students are giving me correct answer, but they are writing crore at the end of GDP deflator. It is what we call in mathematics. It is not a value. It is a. I'm just, the word is slipping out of my mind. Means it will not be in crores. These things have got no value. It means no measuring units. These are not in crores. Rest everything is okay. These are in percentage. Okay, then most of us, means except one or two students, all the answers are correct. So the correct answer is 18.83 into 100 or 83.33. I am sending you the solution as well. This might not look great क्योंकि इसमें चैट बॉक्स में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जो भी आपके चैट बॉक्स में मैसेज आया है उसमें जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो आपने ध्यान से पढ़ना है। GNP deflator of 0.83 or 83% indicates that the price level has reduced by 17% between the base year and the year under consideration. Meaning ये जो GDP deflator होता है, जिसे हमने हेडिंग में प्राइस इंडेक्स भी लिखा है, इसकी जो बेस वैल्यू है, जिसे हम बेस वैल्यू बोलते हैं, is always equal to 100. GNP deflator हो, GDP deflator हो, बेसिकली these are examples of price index जो हमने ग्रेड 11th की स्टेटिस्टिक्स में पढ़े थे। आपको एक दो के नाम भी याद होंगे, लास्पायरेज मेथड था हमारा, वो प्राइस इंडेक्स होते हैं। ये भी उसी का एक एग्जांपल है GNP डिफ्लेटर या GDP डिफ्लेटर।
और इसमें जो चेंज होता है जैसे 83.33% या लेट अस से इट इज 83% फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो बेस वैल्यू है 100%, और अब हमारे जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी आई है 83%। तो इट इंडिकेट्स, सिंपल वर्ड में बताता हूं इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि बेस ईयर में जो चीज 100 रुपीज की थी करंट ईयर में वो 83 रुपीज की है। ये इसका वैल्यू है। बेस ईयर में जो 100 था, जो कोई हम गुड या सर्विस परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू थी 100 रुपीज, नाउ द करंट ईयर और ईयर अंडर कंसीडरेशन 83% की वजह से उसकी वैल्यू हो जाएगी 83 रुपीज। अब वही चीज हमें 83 रुपीज की मिलेगी। क्लियर? अगर क्लियर है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं है तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये वाला आप मुझे रिएक्शन दे सकते हैं, ये वाला रिएक्शन दे सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा पूछ सकते हैं। 4.30 पेज पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप लोग बाद में देख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस लिखाता हूँ छोटे छोटे से, जो आपने मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं। अभी लिखिए पहला क्वेश्चन, आप बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस वैल्यूज लिखने हैं आपने पूरा। आपने जो बोलते हैं कंप्लीट, आपने वर्डिंग नहीं लिखनी है। हाँ ऋषि क्या पूछना चाहते हो बेटा, अनम्यूट करो। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। और मैंने एक ये भी पूछना था, फॉर्मूला में जो है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 है। हाँ जी, हाँ जी, इंटू 100 है। वो जैसे बीच में 100 करते हैं ना, बिल्कुल ऊपर और नीचे लाइन खींचते हैं, ऑब्लिक करते हैं, उस लाइन के साइड में इंटू करके 100 करते हैं, वो वाला है। ये सिर्फ रियल के साथ 100 कैलकुलेट मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, अच्छा दूसरा क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन जो आपने अभी करवाया, जो आप एक्सप्लेन कर अच्छा रहे थे मैं दोबारा बता परसेंटेज। देता हूँ। कोई भी जीएनपी डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर हो, उसकी बेस वैल्यू हमेशा 100 आती है। अब आपसे कहा जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कीजिए, सपोज कर लीजिए कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है 145। तो अब हम ये कहेंगे कि बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज 45% एक्सपेंसिव हो गए हैं। 100 से ज्यादा अगर रिजल्ट आएगा तो एक्सपेंसिव हुए हैं, और 100 से कम आएगा तो वो चीप हुए हैं। जैसे इसकी वैल्यू 83 आई है, तो हम कहेंगे कि करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइजेस 17% चीप हो गए हैं। इस जेएनपी डिफ्लेटर का मेन जो एम होता है वो यही होता है, वी शुड कंपेयर द प्राइजेस ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर। वी शुड ऑब्जेक्टिवली कंपेयर, हम कंपेयर कर लें कि भाई जो बेस ईयर हमने लिया था और जो करंट ईयर है उनके बीच में प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। ओके, लिखें जल्दी से आप। नॉमिनल जीडीपी वैल्यूज लिखनी है आपने सिर्फ, और मुझे कैलकुलेशन करके बतानी है। नॉमिनल जीडीपी 1200, प्राइस इंडेक्स 120, रियल जीडीपी की वैल्यू बताइए। नॉमिनल 1200 है, प्राइस इंडेक्स सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसमें। अपने अपने आंसर्स चेक करते रहिए, मैं आपको
बेटा जब आप मुझे सॉल्यूशन भेजते हैं ना तो प्रॉपर लिखा करें अच्छे से, सिर्फ ये नहीं कि आपने दो वैल्यूज लिख के प्लस माइनस कर दिया और लिख दिया, ऐसे ना, इट डजंट लुक्स गुड और आपकी प्रैक्टिस भी उससे अच्छी नहीं होगी। प्रॉपर सॉल्यूशन भेजा कीजिए, जस्ट लाइक यू आर सॉल्विंग इन द क्लास। Keep checking your responses. Okay, then let us do another question. The correct answer is 1000. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। The value of real GDP is 1000. नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बार मैं सॉल्यूशन आप मुझे, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इजी है, आप कर देंगे। एक और कर लेते हैं बस, देन वी शुड से। I am sending you a picture. Just wait for a moment. Just a moment. आपके पास अगर संदीप गर्ग की बुक है जिनके पास, पेज नंबर 4.86 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये जो मेरे पास एडिशन है, अदरवाइज मैं एक पिक्चर अभी क्लिक करके भेजता हूँ आपको, जस्ट गिव मी 4.86। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, अगर आपके पास बुक है तो, नहीं है तो गिव मी ए सेकंड। देखिए ई में मैंने डाल दिया है क्वेश्चन। डी और एफ में भी डाल दिया है। अब जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स ओनली। ये क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व करके मुझे भेजना है थोड़ी देर में, ठीक है बेटा। इस क्लास को वी आर जस्ट फिनिशिंग द क्लास। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लेकिन आई एम अवेलेबल ऑनलाइन लाइक एज यूजुअल। तो ये आपने जो क्वेश्चन है सॉल्व करके अभी के अभी मुझे फॉरवर्ड करना है। आई एम वेटिंग योर आंसर्स, ओके। एंड कल प्रॉपर टाइमिंग्स होंगी क्लासेस की, मे बी 9:30 और वट एवर सेक्शन वाइज क्लास होनी है कल। तो ज्वाइन योर क्लास विद योर सेक्शन और अदर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए साहब, हैव अ गुड डे। और बाहर नहीं निकलना है किसी ने भी, कोरोना हो रहा है, तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, सबने घर में ही रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपकी अकाउंटेंसी की क्लास 11:30 पर होगी आज।